Good morning, students. Recently, you appeared in NTSC exam, and there were 40 questions of SST. So today we are going to discuss these MCQs which were in your NTSC exam. Question number 34 to 73. 40 questions are there. So let's start with the first question. In which of the following year the first radio program was broadcast? It's about India, right? The question is not complete, but it is understood that it is being asked regarding India. So 27, 1923, 1939, 22 March 1925. So the correct answer is 1927. 23rd July 1927 by IBC, Indian Broadcasting Company Limited. This was started, under which it was the authority under which two radio stations were there, Bombay radio station and Calcutta radio station. Bombay radio station broadcasting was there on 23rd July, and from Calcutta radio station broadcasting was there from 26th of August 1927. So you have to remember. Question number 35. What percentage of their deposits is kept as cash by the banks in India? It's very easy question. You know the answer. 15%. Identify the incorrect option. Early entrepreneurs of India. Who of the following was not early entrepreneur of India? Dwarkanath Tagore, Bengal, Seth Hukumchand, Calcutta, who set up the first Indian jute mill in Calcutta. Bhai Bhosle of Bombay, Dinsha Petit and Jamshedji Nusrawanji Tata or Parsis of Bombay. C is the correct answer, because Bhai Bhosle was not entrepreneur. He was just working in union mill, cotton mill, and he was the member of union in cotton mill. How did urban merchants acquire trade monopoly? अर्बन मर्चेंट्स यानी कि शहरों के जो व्यापारी मर्चेंट्स थे, उन्होंने ट्रेड मोनोपोली कैसे ले रखी थी? ट्रेड मोनोपोली का मतलब होता है कि ट्रेड करने का राइट एक पर्टिकुलर कमोडिटी में सिर्फ आपका ही होगा, राइट? तो उस कमोडिटी को कोई दूसरा उसके बारे में व्यापार नहीं कर पाएगा. सो द ओल्ड मर्चेंट्स हैड वॉन ओवर द वीवर्स एंड आर्टिसंस. द पावरफुल मेंबर्स ऑफ द गिल्ड्स had bribed the rulers. The rulers granted different guilds the monopoly right and trade of specific products. The guilds were so powerful that they did not allow new merchants and enter into field of trade. तो इसमें हमने देखना है कि क्या रीज़न था कि उनको ट्रेड मोनोपोली मिलती थी, राइट? ये तो रीज़न हो गया कि क्यों मर्चेंट्स गांव की तरफ गए, लेकिन ये है करेक्ट आंसर कि रूलर्स वहाँ के जो थे वो उनको मोनोपोली राइट्स दे देते थे. Yes, next question. Which of the following statements is incorrect? इसमें से आपको incorrect छांटना है, यानी कि 3 सही है, 1 गलत है, वही हमें बताना है. The concept of fundamental rights are borrowed from American Constitution where they are found in the Bill of Rights. American Constitution में जो rights हैं, जैसे right equality का right है, freedom का right है, ये सब Bill of Rights में है. तो यहाँ से हमने बोरो किया है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है. इफ फंडामेंटल राइट्स आर वोलेटेड द एग्रीव्ड इंडिविजुअल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली. आपका अगर फंडामेंटल राइट वोलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये भी सही बात है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू द रिट्स यानी कि स्पेशल डायरेक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन डिफेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फॉर अदर राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन में लगता है. चलिए अगले वाले को पढ़ते हैं. फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स आर कॉमन टू मोस्ट लिबरल डेमोक्रेसीज. ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसीज वो होती हैं जो अपने सिटीजन्स को राइट्स देती हैं. तो सी जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे सही नहीं है. क्यों? क्योंकि रिट्स जो होती हैं वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, जो राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दे रखे हैं. यानी कि जो राइट पार्ट 3 में नहीं है उसके लिए ना तो सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट जो है रिट्स जो है वो नहीं डाल सकता है.
रिट्स इशू नहीं कर सकता है किसी के लिए भी। नॉट एवरीवन वेलकम्ड द प्रिंटेड बुक, देयर वॉज वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म, प्रिंट कल्चर का बहुत ज़्यादा वेलकम हुआ लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। व्हाट कुड हैव बीन द रीजन, फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इट वॉज फियर दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वॉज प्रिंटेड एंड रेड देन रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड। इस तरह की जो थिंकिंग थी वो कुछ लोगों की थी, जैसे उसमें एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था इरेस्मस, राइट। तो इरेस्मस इसी टाइप का एक रिफॉर्मर था जो प्रिंट के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं था और उसको क्रिटिसाइज करता था। तो इसमें ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, ये स्टेटमेंट आपको पहचानना है किसका है। द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। ये हमने पढ़ा था। लुई सेबेस्टियन मर्सियर जो कि फ्रांस के नोवेलिस्ट थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उनके नोवेल्स में ज़्यादातर जो हीरोज होते थे वो ऐसे ही देवर वेरी लिटरेट एंड विद द हेल्प ऑफ द पावर ऑफ देयर लिटरेसी एंड द प्रिंट दे यूज टू डिफीट द टायरनी एंड क्रूएल रूलर्स। क्लियर। तो इसलिए लुई सेबेस्टियन मर्सियर गेव दिस स्टेटमेंट। एक मार्टिन लूथर का स्टेटमेंट है, राइट। उसके अकॉर्डिंग प्रिंट जो है वो एक अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन, ये वाला स्टेटमेंट था। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन हमने अभी तक किए हुए हैं लगभग। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16, 12, 18 ईयर्स, 14 ईयर्स। ये 2002 में 86th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज सभी सिटीजन्स का ये राइट है। तो ये मतलब ये ड्यूटी आ गया और चिल्ड्रन का ये हो गया राइट। तो 14 ईयर्स एज ऑफ चिल्ड्रन, तो 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ये राइट है कंपल्सरी एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 42। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो इसका आंसर आरबीआई आ जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1934 के एक्ट के अकॉर्डिंग 1935 में हुआ था, ये हमने नोट्स में भी आपको प्रोवाइड कर रखा है। हाउ मच डिस्टेंस डिड द प्लेन ट्रेवल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। देखिए फर्स्ट प्लेन इंडिया ये जो है ये ट्रेवल किया था इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से लेकर एक ट्विन सिटी इलाहाबाद में, वहाँ से लेकर और नैनी तक, राइट। ट्विन सिटी ऑफ इलाहाबाद, नैनी, तो इनके बीच में चला था और सही जो डिस्टेंस है वो 9.7 किलोमीटर का था, राइट। 18 फरवरी 1911 18 फरवरी 1911 को ये सबसे पहली फ़्लाइट जो थी वो प्लेन उड़ा था और डिस्टेंस जो था वो 9.7 किलोमीटर था। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन अगर आप क्लोजेस्ट लेंगे तो फिर आप इसमें बी के साथ जा सकते हैं, 10 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 44, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए मिला के देखते हैं। गोमस्ताज वर पेड सर्वेंट्स, ऑफिशियल्स हु एक्टेड एज कंपनीज, कंपनी के पेड सर्वेंट थे। स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स, स्पिनिंग जेनी 1764। स्टीम इंजन जेम्स वॉट। कॉटन मिल रिचार्ड आर्कराइट। एंड फर्स्ट इंडियन जूट मिल 1917 सेठ हुकुमचंद। तो देखिए इस कोड को हम देखते हैं कहाँ है। A3 B4 C5, तो ये देखिए C हमें मिल गया, C5 एंड D3 E फर्स्ट, तो ये आपका मिल गया ए ऑप्शन मिल गया आपका, राइट। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप कोड मिलाएंगे, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 45 merchants and students in the university towns bought cheaper printed copies of books in Europe. What kind of books were bought by aristocrats? Aristocrats कौन थे? जो रिच पीपल थे और जो रॉयल फैमिली के लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स थे। वो कैसी किताबें पढ़ते थे? हैंड रिटन बुक्स वो पढ़ते थे, लेकिन वो बहुत ही महंगी होती थी। क्यों होती थी? बिकॉज दोज बुक्स वर पब्लिश्ड ऑन, या वो लिखी जाती थी, किस पे लिखी जाती थी?
बहुत ही महंगे वैल्यूम पे लिखी जाती थी। वैल्यूम क्या होता था? पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। तो इसमें सी ऑप्शन आपका आ गया। एरिस्टोक्रेट्स इससे बनी हुई बुक्स को पढ़ते थे। दीज वर वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? वर्नाकुलर एक्ट 1878 में ब्रिटिश जो है ड्यूरिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट इट वाज पास्ड 1878, और लॉर्ड लिटन के टाइम पे इसको पास किया गया था। क्यों पास किया गया था? देखिए सही रीजन, वर्नाकुलर एक्ट वाज पास टू प्रमोट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि लैंग्वेजेस के तो अगेंस्ट था ये। वर्नाकुलर एक्ट पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू पुट सम चेक ऑन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स व्हिच हैड बिकम असर्टिवली नेशनलिस्ट। ये बिल्कुल सही है, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो छापा जाता था उसमें पब्लिश किया जाता था उसको रोकने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज? टेनरीज, डेफिनेटली इससे वाटर जो है वो पोल्यूट होता है क्योंकि जो एनिमल स्किन होती है उसको ट्रीट किया जाता है तो इसमें पानी वाटर पोल्यूशन होता है। केमिकल इंडस्ट्री से डेफिनेटली वाटर पोल्यूशन होता है। एफ्लुएंट्स मीन्स कम टू द रिवर्स, तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है। ये ब्रिक किल्न्स जो है ये अलग ऑप्शन है, तो इससे वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, एयर पोल्यूशन होता है। रिफाइनरीज की जहाँ तक बात है, कुछ रिफाइनरीज से वाटर पोल्यूशन होता है, कुछ रिफाइनरीज से एयर पोल्यूशन होता है। तो इसे अगर फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी लेंगे तो ऑयल रिफाइनरी से वाटर पोल्यूशन होता है, तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन इस तरह का नहीं है जिसमें ये तीनों ऑप्शन आ जाएं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड डेफिनेटली है, फोर्थ नहीं है, इसलिए हम सबसे क्लोजेस्ट जो है वो ए ऑप्शन को मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें से कोई भी बिल्कुल 100% करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ दीज इज नॉट अलाउड अंडर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इन इंडिया? कौन सा इनमें से नहीं है इस राइट के अंडर में? देखो ये आ गया आपका, एवरी कल्चर ग्रुप हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर, बिल्कुल है। एडमिशंस कैन बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर इन गवर्नमेंट एडेड, यस इसमें आएगा। गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी कल्चरल ग्रुप के किसी भी कैंडिडेट को रिलीजन और कल्चर के बेस पे उसको मना नहीं किया जा सकता है, राइट। तो लेकिन इसमें कह रहे हैं कि मना किया जा सकता है, तो इसलिए गलत सेंटेंस हो गया, दिस इज wrong sentence and it is not the part of this educational right, so B is the correct answer। आगे वाले दोनों हैं, आप पढ़ के देख सकते हैं। 49 क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है। नेचुरल राइट्स आर यूनिवर्सल राइट्स विच आर इनहेरेंट इन एवरी इंडिविजुअल बीइंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ये जो हमें नेचर से राइट मिलते हैं, प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं, वो सभी को मिलते हैं। सिविल राइट्स आर द राइट्स दैट सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंजॉय एंड आर कंफर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ ऑफ द कंट्री। कोई भी स्टेट है वो प्रोवाइड करता है, वो सिविल राइट्स होते हैं और ये राइट्स सिटीजन्स को मिलते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 20 एंड 29 इन द चैप्टर, कौन से चैप्टर में? चैप्टर 3 यानी कि पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। इंडियन सिटीजन के लिए ही है ये राइट। 15, 16, 19, 20 और 29 ये स्टेटमेंट गलत है, राइट। अगला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन यूएन ने किया था 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को किया था। तो इसमें ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, इसलिए 1, 2 और 4, 1 ये 2 भी सही है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ द कंट्री। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और फिर आपसे पूछा गया है कि करेक्ट कौन से हैं, करेक्ट ऑप्शंस इनमें से कौन कौन से हैं। तो इसमें ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि 15, 16, 19 और 20 जो है 20 ये तो फॉरेनर्स के लिए होता है। देखो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इसमें जो आर्टिकल्स हैं 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि किसी भी फॉरेनर के लिए नहीं है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही हैं। लेकिन इसमें 20 आ गया तो ये स्टेटमेंट पूरा ही इससे गलत हो गया, तो इसलिए ऑप्शन भी इसमें सारे गड़बड़ हो गए, राइट। तो इसमें आपसे पूछा गया करेक्ट कौन कौन से हैं, तो इसमें 1 और 2 और 4 करेक्ट हैं जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
A right is a legal claim that a citizen or any other individual is granted by the constitution or any statute. Statute होता है कोई भी law, written law passed by the legislature. Rights are the essence of democracy. बिल्कुल definitely democracy में बहुत ज़रूरी होते हैं. Rights are associated with equality in contemporary times. ये भी ठीक बात है. Playing field among the people. और राइट टू एजुकेशन बिकेम फंडामेंटल राइट. इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 20A जोड़ा गया था 21 में. और तो इसलिए इसमें जो इनकरेक्ट है वो छाटने. विच ऑफ द वो स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. नन ऑफ अबव आ गया. 51 में चलते हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर्स आयरन और उसके बाद कोकिंग कोल और लाइमस्टोन. ये किस रेशो में होते हैं? अप्रोक्सीमेटली इस रेशो में होते हैं. 4:1 के रेशो में होते हैं. याद रखना है आपको. बी आ जाएगा इसका 51 का. 52 बहुत ही सिंपल है. जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज देयर. छोटा नागपुर प्लेटू रीजन. दिस इज बी ऑप्शन. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट्स इज मोर वैलिड. देखो, एवरी कंट्री दैट इज डेमोक्रेसी गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन्स. देखो, जो भी कंट्री डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन्स को राइट्स जरूर देगी. और इसमें बोला गया है कि जो राइट देगी वो डेमोक्रेसी होगी, जो कि गलत दिख रहा है क्योंकि कई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी तो राइट दे सकती हैं, राइट. तो इसलिए ए ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट, व्हेन वाज NHRC सेटअप. ये एक एक्ट पास हुआ था, जैसे हमने चैप्टर जब पढ़ा था उस टाइम आपको बताया था 1993 में. इंडिया एक्सपोर्ट जूट गुड्स टू अमेरिका, USA. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेवेंट टू द प्रिजनर्स ऑफ ग्वेंटानामो में. देखिए, इसमें से कौन सा रिलेवेंट नहीं था? गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्रीज वर नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर अरेस्ट. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फैमिलीज एंड UN रिप्रेजेंटेटिव्स वर अलाउड टू मीट देम. नो, दे वर नॉट अलाउड टू मीट देम. ये गलत स्टेटमेंट है. देयर वॉज नो प्रॉपर ट्रायल बिफोर मैजिस्ट्रेट. ये भी सही स्टेटमेंट है. दे वर केप्ट इन प्रिजन इवन आफ्टर दे वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी. ये भी सही स्टेटमेंट है. तो इसलिए बी आ गया इसमें करेक्ट आंसर. क्लियर. Who wrote about the injustices of caste system in गुलामगिरी 1873 में पब्लिश हुआ था. महात्मा ज्योतिराव फूले ने ये बुक लिखी थी और ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ये बुक थी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया. साउदर्न इंडिया में NH47A ये स्मॉलेस्ट है. लगभग सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं. सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर कर रखे हैं, डिस्कस भी किए हुए हैं. MCQs के अंदर भी, नोट्स में भी आपको मिले हुए हैं. Which one of the following is the oldest Japanese book. ये भी किया हुआ है. Diamond Sutra is the correct answer. Published in 868 AD. Right? Next. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. Why were there frequent clashes between the Gomastha and the weavers. देखिए, गोमास्ताज कौन थे? पेड सर्वेंट्स ऑफ द ब्रिटिश. क्लियर. वो क्या करते थे? वीवर्स के साथ बुरा व्यवहार करते थे. वो उनसे सप्लाई जो है लेने के लिए भी स्ट्रिक्ट बिहेवियर करते थे. क्यों ऐसा होता था? वाई वर देयर फ्रीक्वेंट क्लैशेस. सबसे क्लोजेस्ट रीजन था गोमास्ताज वर आउटसाइडर्स, क्योंकि वो बाहर के लोग थे, क्योंकि पेड सर्वेंट्स थे और उनके गांव वालों के साथ में सोशल लिंक नहीं थे. राइट. तो ये इसमें सबसे करेक्ट आ गया, क्लोजेस्ट. द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट. प्रोवाइड. क्या प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क? skilled software professionals, capital to start software company, single window service and high speed data communication facility to software expert. C is the correct answer. NCERT में as it is ये sentence दे रखा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल याद रहेगा. Which are the two prime factors for the location of aluminium industry? Aluminium industry के लिए सबसे जरूरी है bauxite, क्योंकि रॉ मटेरियल ही किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी होता है. तो इसके लिए इसमें देखते हैं मार्केट, लेबर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, वाटर सप्लाई, चीप रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइट. जैसे मैंने आपको बताया बॉक्साइट इसके लिए सबसे जरूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर रॉ मटेरियल फॉर एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. सो सी इज द करेक्ट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री. एपेक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, यानी कि जो की इंस्टीट्यूशन होता है मॉनेटरी सिस्टम के लिए, वो कौन सा बैंक होता है? बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दी. जिसमें आएगा सेंट्रल बैंक, क्योंकि कोई भी किसी भी कंट्री का सेंट्रल जो बैंक होता है वो उसका अपेक्स होता है, और इंडिया में ये काम जो है वो RBI करता है. राइट. सो RBI इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ कंट्री. वॉज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर वीविंग. वीविंग के लिए इसमें फ्लाई शटल काम आता था, हालांकि लूम्स भी काम आता था, लेकिन ये मैकेनिकल डिवाइस था.
Fly shuttle. B is the correct answer. What made workers become hostile to spinning jenny? इंग्लैंड में जब स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया गया था और उसके बाद इसको इंडस्ट्रीज में यूज किया गया तो लोगों ने इसका विरोध किया. स्पेशली वर्कर्स अपोज्ड इट. व्हाई दे वर अपोजिंग स्पिनिंग जेनी? कॉमन पीपल हैड नॉट येट एक्सेप्टेड मशीन मेड प्रोडक्ट्स. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. टू सम पीपल मशीन्स अपीयर्ड एज मॉन्स्टर्स. रॉन्ग स्टेटमेंट. इट हैड रिड्यूस द डिमांड फॉर लेबर. ये आएगा इसमें क्योंकि वर्कर्स का पूछा हुआ है. वर्कर्स इसको लाइक क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इससे इसके यूज से उनकी डिमांड घट जाती और फिर उसके बाद वो बेरोजगार हो जाते. विच कंट्री इज द मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडियन यार्न? जापान. ये एज इट इज एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन है. जापान. विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ रोड्स इन इंडिया? सबसे ज़्यादा जो रोड हैं वो महाराष्ट्र में है. आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका. और रिमेंबर यू हैव टू कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें हैं इन महाराष्ट्र. पूरी कंट्री का अप्रोक्सीमेटली 23% जो रोड है वो महाराष्ट्र में है पूरी कंट्री का. इसके बाद चलते हैं. इट मेंटेन्स द डिस्ट्रिक्ट रोड्स. ब्लॉक समिति कोई रोड जो है मेंटेन नहीं करती है. जिला परिषद, A&B, NHAI. तो इसमें B इज द करेक्ट आंसर, जिला परिषद. Many historians have argued that print culture created the conditions within which French Revolution occurred. Choose the correct statement in this regard from the list given below. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. प्रिंट कल्चर प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म. देखिए प्रिंट कल्चर से कंजर्वेटिज्म जो आइडिया है वो बिल्कुल भी इससे प्रमोट नहीं हुआ क्योंकि ये पुराना आइडिया होता है. कंजर्वेटिज्म इज द कंजर्वेटिव आइडिया in which the old tradition was followed by the conservatives, right? So print culture was against conservatism. It motivated the masses to protect old norms and values. It is also wrong because it was against the old norms and values. Print culture created public opinion in favor of despotic power of the state. This is also wrong statement because the people were opposing despotic power after reading the books. So print culture opposed the despotic power. Despotic power का मतलब होता है there was no restriction on the ruler. Print popularized the idea of enlightened, yes, thinkers who attacked the despotic power of the state. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में जैसे रूसो था, मोंटेस्क्यू था, वोल्टेयर था, इन लोगों ने डेस्पोटिक पावर यानी कि जो फ्रेंच मोनार्कियल सिस्टम था, लुई 16 था, उसके अगेंस्ट लिखा तो लोगों में एनलाइटनमेंट आया, अवेयरनेस आया. तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 69th. चलिए 70th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन विच कंट्रीज ग्रामीण बैंक मीटिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ ओवर 6 million पुअर पीपल? बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर. यू नो वेरी वेल. सी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? इनमें से कौन सा इनफॉर्मल सोर्स नहीं है? मनी लेंडर इनफॉर्मल सोर्स है डेफिनेटली. रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी इनफॉर्मल है. कमर्शियल बैंक्स और ट्रेडर्स, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो दीज आर रेगुलेटेड बाई RBI and so these are not informal. The main theme of the book छोटे और बड़े का सवाल written by काशी बाबा. काशी बाबा ने बुक लिखी थी छोटे और बड़े का सवाल. कानपुर में एक मिल वर्कर हुआ करते थे. तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? इसका कॉन्सेप्ट था लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन, कि अमीर और गरीब और लोअर कास्ट अपर कास्ट इन दोनों में लिंक जो है वो बताया गया छोटे और बड़े का सवाल. यानी कि छोटे दो टाइप के लोग होते हैं. एक तो लोअर कास्ट पीपल, वो छोटे माने गए थे, और दूसरे जो पुअर पीपल हैं. तो इस तरह से ये इसमें कॉन्सेप्ट था, आपको याद रखना है. लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ SST 73rd क्वेश्चन. हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स इन इंडिया? सबसे कम जो रोड डेंसिटी है वो कौन से स्टेट की है? गोवा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मेघालय. इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर में रोड डेंसिटी सबसे कम है. अगर हम 2011 के डेटाज को लेके अगर कंपेयर करें तो इंडिया में 142.7 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो रोड डेंसिटी रही है. जबकि इसी सेंसस के अकॉर्डिंग, इस 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर में 41.30 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर रोड डेंसिटी रही है. तो इट इज़ द लीस्ट, राइट. लोवेस्ट है जम्मू एंड कश्मीर में. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 40 क्वेश्चंस.
Still, if you have any doubt in any question, you can ask me by writing in the comment box. पूछ सकते हैं, और इनमें से मैक्सिमम ये बता सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस बड़े आसान थे. अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछेंगे, और इनको संभाल के रखना है, प्रैक्टिस इनकी करते रहना है. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी टेस्ट में आता है सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, और ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस हैड बीन कवर्ड ड्यूरिंग द चैप्टर एंड नोट्स. सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे. बहुत सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में से हैं और वीडियोज़ में से तो हैं ही है, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कर रखे थे. आगे भी इसी तरह से आप मेहनत करें, और उम्मीद है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.